So good afternoon, everyone, and welcome back to PPS Lab Sessions, Programming for Problem Solving Lab Sessions. We are continuing. Till now, we have a set of lab sessions already conducted, and we have looked at how computer works. And in a second session, we looked at a basic structure of a C program. We've also gone through those theory parts in a lecture session. So I believe that most of you are aware of what a basic structure of C program, how we can create our first program and have a hello world message. But when you look at your experiment list, your first program says that you need to create a program which will be working like a calculator, which will perform addition, multiplication, division, subtraction operations. So for this, we require operator. And in today's session, theory session, we looked at multiple operators, plus, minus, into, divide, arithmetic operators. We also seen conditional operator, assignment operator, and number of operators we discussed today. So actually, your first program itself requires those operators. And now you are aware that you can use any of those operators and perform your task. So from today, we are in a position to actually create these programs. So if you look at this first program, it says you create a calculator kind of thing where you require two values, and you can perform addition, multiplication, division, or subtraction on those two numbers. And whatever final answer you have, you print it on the screen. That's your first program. Your second program is again creating a C program which will actually calculate the area of a triangle. Now, to help you, university has already given the equation of area of a triangle. It's half height into base. So where we require height of a triangle and we require base of a triangle, and we can calculate area. Okay. Similarly, on a third program, if you want to calculate simple interest, then we require principal amount, we require rate of interest, and the number of years, tenure. Now, if you do have three values, then you can calculate simple interest. Fourth program says that you interchange two numbers. So first you have two numbers and then change those two numbers. Fifth program is again similar way. You take a distance in kilometers and then you convert that distance from kilometer to other units, meter, feet, inch, centimeter, and so on. So all these programs are nothing but usage of arithmetic operators. Still, if you look at further program, sixth program says that you compute a Fahrenheit from centigrade. So you take a value in centigrade, and using this equation, you convert it to Fahrenheit, where 1.8 is a constant, 32 is also a constant, C is a centigrade value, so you can calculate Fahrenheit. Even seventh program can also be done. It says that you find a distance traveled by the equation this. So if you have ut and you have at, then you can calculate the distance, right? So up to seventh program, you can work out and you can complete those programs. Look, eighth program is again finding whether the given value is negative, positive, or zero. In this case, you are going to use conditional operator. It's okay. But with that conditional operator, you need to use conditional flow, if else. And we haven't seen if else yet. So that we will see that in the third unit, and that's why starting from practical number 8, 9, and so on, further practicals we will do later. Okay, but you are in a position to complete 7 programs today. Now, to make you aware of the entire process, let me show you some of the programs, 1 or 2 programs first, so that the entire flow
entire picture will be clear in your mind how we can implement this thing. And then I'll give you your time to perform these tasks. Okay. Now, before we start these things, we need to learn how we can take value from user, because we haven't seen IO operations. IO operation function is actually a last topic in our unit, लेकिन वो अभी तक हमने लेक्चर में कवर नहीं किया है. सो पहले मैं आपको IO फंक्शन दिखा दूं. बेसिक दो फंक्शन दिखाऊंगा. एक आपको ऑलरेडी पता है, प्रिंट एफ, टू प्रिंट वैल्यू. अगर वैल्यू गेट करनी है तो हमें स्कैन एफ यूज़ करना पड़ेगा. तो मैं आपको पहले प्रिंट एफ स्कैन एफ सिखाऊंगा, देन आपको एक या दो प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, and then you'll have your time to do all the programs. So first of all, let us have a basic program. Look, I'm using online GDB, online C compiler. I've already logged in to my account so that I can save my files, and I can access my older projects also. Now, this is my new project, let's say. So everyone knows that, first of all, if I want to use printf function, then I need to have stdio included. So I'm going to do include stdio.h file. Then we should go for int main, and here I can use that printf method. Everyone knows this thing, right? So if I run this code now, then on the output screen, I'm going to have hello world message at this place. Yeah, we have that message, hello world. Now this printf function is actually going to print something on the output screen. So that's kind of an output. Now how can we have input? अगर मुझे input लेना है, यूजर के पास से कोई वैल्यू गेट करना है, तो मुझे scanf function यूज करना पड़ेगा. Now again, scanf is defined in stdio.h. So अगर मैंने stdio.h को include कर लिया तो मैं scanf यूज कर सकता हूँ. So what this is actually, if you want to take input from user, तो आपको scanf यूज करना है. यूज scanf फंक्शन. और जब आपको आउटपुट प्रिंट करना है, आउटपुट प्रिंटेड ऑन स्क्रीन, तो आप printf यूज करोगे. Now what is actually the syntax of using these two functions? So let's have a look at syntax. Sorry. So the syntax is, first you write your function name scanf. फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएंगे, और उसके अंदर दो पैरामीटर. पहला पैरामीटर होगा फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा दूसरा पैरामीटर होगा जहाँ पे आपको वो वैल्यू स्टोर करनी है, वो वेरिएबल. और एक से ज़्यादा वैल्यू भी आप गेट करके स्टोर कर सकते हो, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल देने पड़ेंगे यहाँ पे. Now that's gonna be your syntax. ये syntax डिटेल में और परफेक्ट में हम लेक्चर में देखेंगे. Now printf is also going to follow the same syntax, just that it is gonna be printf function, पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग और उसके बाद वेरिएबल्स. सो मान लो कि आपको एक वेरिएबल एक वैल्यू गेट करनी है, इंटीजर वैल्यू. तो मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, let's say number. So I have declared a variable number. Number is nothing but a label or just the identifier. Okay, और उसका data type है int. So that's gonna store integer value.
Now this is just a variable declaration. तो if you remember, this is a declaration part. और उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा वो executable part. अब अगर मुझे एक वैल्यू गेट करना है तो सबसे पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर मैं प्लेस होल्डर डिफाइन करूँगा %d। अगर इंटीजर वैल्यू लेना है तो %d करो, फ्लोट वैल्यू लेना है तो %f करो। तो d डिफाइंस कि भाई scanf जो है वो एक इंटीजर वैल्यू यूज़र के पास से गेट करेगा, कॉमा सेकंड पैरामीटर, जो फंक्शन के अंदर ये जो हम लिखते हैं वो सब पैरामीटर कहलाते हैं। सो सेकंड विल बी द वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? नंबर। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल लिखूँगा नंबर। बट रिमेंबर, जब आप scanf करते हो तो वेरिएबल के साथ आपको एम्परसेंड करना होगा, कंपल्सरी। रिमेंबर दिस थिंग। scanf में वेरिएबल के आगे एम्परसेंड लिखो। Now what is this ampersand? It is address operator। और जब हम पॉइंटर समझेंगे तब आपको ये एम्परसेंड ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, आपको एम्परसेंड करके वेरिएबल लिखना है scanf में। जो नंबर यूज़र ने दिया उसी नंबर को आप प्रिंट करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखोगे। नाउ एज लॉन्ग एज दिस इज आउटपुट, मैं एक मैसेज भी साथ में लिख सकता हूँ, यू हैव एंटर्ड। ये एक कांस्टेंट मैसेज बन गया। उसके बाद मुझे वो वैल्यू चाहिए। सो अगर वैल्यू चाहिए तो मैं प्लेस होल्डर लिखूँगा %d। डबल कोट ख़त्म करने के बाद, मेरी स्ट्रिंग जब ख़त्म हो जाए, डबल कोट कंप्लीट करने के बाद कॉमा, एंड देन योर वेरिएबल। अब printf में एम्परसेंड नहीं करना है आगे। सो व्हाट यू शुड रिमेंबर, scanf में एम्परसेंड लिखना है, printf में एम्परसेंड नहीं लिखना है। Now this is going to print that number at this place। %d की जगह पे वो ये नंबर प्रिंट करेगा, जो भी नंबर मैं दूंगा उसको। So this is my simple program, right? So if I run this code, then it is going to scan this number first। So मेरा प्रोग्राम अभी यहाँ पे अटका हुआ है। It is actually expecting me to enter one number। मुझे एक नंबर देना होगा। Let's say मैंने 6 दे के एंटर दिया, तो वो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और आगे जाके वो प्रिंट करेगा यू हैव एंटर्ड। सो वी हैव दैट मैसेज, यू हैव एंटर्ड, एंड देन %d की जगह पे नंबर। कौन सा नंबर? जो नंबर मैंने दिया, सो 6। सो scanf से आप वैल्यू गेट कर पाओगे, printf से आप उस वैल्यू को प्रिंट कर पाओगे। जनरली व्हाट वी डू इज़, जब भी हम scanf यूज़ करते हैं तो उससे पहले एक मैसेज प्रिंट करते हैं। अगर प्रिंट करना है तो printf। एंड लुक हाउ आई राइट दिस कोड। आप ये आदत बना लो अपनी। व्हेन यू राइट printf, नॉट ओनली printf, कुछ भी टाइप करते हो, अगर वो फंक्शन है तो वो फंक्शन लिखने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन पहले ही कर दो। इसका मतलब ज़्यादा लंबा कोड लिखने के बाद आप ये भूल ना जाओ, क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन लिखना भूल ना जाओ, इसलिए वो पहले लिखो। देन यू गो इन बिटवीन दोज पैरेंथेसिस एंड डबल कोट, डबल कोट, 2 बार डबल कोट। आपने क्या किया? फॉर्मेट स्ट्रिंग डिफाइन किया। फिर से बीच में जाओ एंड देन यू टाइप योर मैसेज। अब यहाँ पे एक मैसेज मैं क्या दूंगा? टू मेक माई यूज़र अवेयर कि भाई ये प्रोग्राम आपके पास कुछ मांग रहा है। सो मैं एक मैसेज दूंगा, प्लीज़ एंटर अ नंबर। एक मैसेज दे दिया। सो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जैसे ही स्टार्ट होगा मेन से, एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वो पहले मैसेज देगा, एंड देन इट विल वेट फॉर मी टू एंटर अ नंबर। जैसे ही मैं नंबर देता हूँ वो नंबर लेके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब वो नंबर अगर वेरिएबल में स्टोर हो चुका है तो उस नंबर को मैं यूजिंग वेरिएबल कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ।
अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं सेम नंबर वेरिएबल को यूज़ करूँगा. सो नाउ इफ़ वी रन दिस प्रोग्राम, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, प्लीज़ एंटर अ नंबर, लाइक दिस वे. एंड नाउ इट इज़ वेटिंग, it's waiting for me to enter a number. Let's say मैंने डाला 3 and then when I press enter, वो आगे बढ़ेगा, आगे जाके मुझे मैसेज देगा, you have entered that number, so you have entered 3. Okay, so this is how you can take a number from user and you can store that number in a variable so that you can use that variable to perform your task. Scanf and printf, right? So any query at this point? Okay, Abhishek is asking, sir, yellow sentences are only comments, not code. Look, that depend, color coding depends on which editor you are using. So हर बार ऐसे मत मान लो कि येलो कलर है तो कमेंट है. वो कलर कोडिंग जो है वो एडिटर पे डिपेंड करता है. ऑनलाइन एडिटर कुछ कलर दिखाएगा, ऑफलाइन एडिटर कुछ और कलर दिखाएगा. सो it is not fixed. Fine. About that previous code, which one? Well, in this one, when I say double slash, it indicates it's a single line comment. We have already seen comments, single line comment, multi-line comment. So double slash किया तो वो single line comment है. Star slash star करूँगा तो वो multi-line comment हो जाएगी. So definitely color code पे मत जाओ. अगर double slash है तो वो comment है. Fine. Yes. Okay. Fine. So now let us focus on these practicals. Let's say सबसे पहले मैं आपको ये second practical करके दिखाता हूँ. Okay. So for example, if you are doing your some practicals, सबसे पहले आप क्या करोगे? On your documentation section, multi-line comment में आप define करोगे which program you are writing here. So this is my comment section. Okay. तो ये मेरा comment documentation section हो गया. Documentation section on the top. Then I have a link section. Definition section और global declaration section की मुझे ज़रूरत नहीं है. I'll go to main section. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? Always analyze your definition. It says that write a program to find area of triangle. अगर triangle का area calculate करना है तो मुझे height और base चाहिए, right? अगर ये दो वैल्यू मेरे पास हैं तो मैं एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूँ एंड एरिया विल बी द थर्ड वैल्यू. तो मेरे पूरे प्रोग्राम में मैं 3 वैल्यू हैंडल करूँगा. तो मुझे 3 वेरिएबल चाहिए होंगे जहाँ पे मैं वो वैल्यू स्टोर कर पाऊँ. सो लेट्स से आई एम गोइंग टू हैव एरिया, height and base. Now you do remember the comma operator we have seen today. सेम टाइप के स्टेटमेंट्स को हम लिंक कर पाएंगे, मर्ज कर पाएंगे यूजिंग कॉमा. ये तीनों वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ. सो आई हैव कंबाइंड दोज स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल लाइन यूजिंग कॉमा. अब एरिया तो डेफिनेटली फ्लोट रहेगा. हाइट और बेस इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं ये तीनों वेरिएबल जो है वो इंटीजर की बजाय उसको फ्लोट डिक्लेयर करूँगा. So this is how we declare a variable. Data type space variable का नाम. एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो कॉमा करके सेकंड वेरिएबल, कॉमा करके थर्ड वेरिएबल एंड सो ऑन. सो वी हैव डिक्लेयर्ड दोज वेरिएबल्स. अब हमें वो वैल्यू चाहिए. सो हमें हाइट और बेस की वैल्यू चाहिए, यूज़र एंटर करना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू प्रिंट अ मैसेज फर्स्ट, प्लीज़ एंटर
हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर के प्लेस पे हाइट लिख दूंगा। तो ये स्कैनएफ जो भी वैल्यू स्कैन करेगा वो वैल्यू को हाइट के अंदर स्टोर करेगा। अब हाइट जो है वो फ्लोट डेटा टाइप का है, तो ये परसेंटेज डी की जगह पे मुझे परसेंटेज एफ लिखना होगा। So this format string placeholder depends on what kind of data you are going to read or write. So ये हो गया मेरा, मैंने height get कर लिया user के पास से। Simply let me copy paste it one more time. मुझे दूसरी बार ये कमेंट नहीं चाहिए, और यहाँ पे मैं height की जगह पे base get करूँगा। Please enter base of a triangle, और यूज़र जो भी वैल्यू देगा उसको मैं क्या करूँगा, बेस में स्टोर कर दूंगा। So scanf is going to get one value from user and it will store that value in this given variable. तो पहले height लेके स्टोर किया, उसके बाद base लेके स्टोर किया। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू है, मेरे पास height भी है, मेरे पास base भी है, तो मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, height multiply by base multiply by 1 by 2 half, so 0.5। अब यहाँ पे 0.5 जो है वो कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट वैल्यू। बेस और हाइट यूज़र ने जो भी दिया होगा वो आ जाएगी। नाउ दिस कैलकुलेशन विल गिव यू सम आंसर। उस आंसर को आप एरिया के अंदर स्टोर करोगे। सो जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी फाइनल आंसर मिलेगा, आप उस आंसर को एरिया में assign करोगे। So this is assignment operator. Now this is multiplication operator, right? Now we have calculated our area. Finally area calculate करने के बाद मुझे वो print करना है। So अब यहाँ पे मैं print करूँगा। Area of a given triangle, triangle जो है वो float value है, तो percentage f, और यहाँ पे मुझे वो वैल्यू प्रिंट करनी है। कौन सी वैल्यू? एरिया की वैल्यू। सो जहाँ जो भी एरिया कैलकुलेट हुआ वो एरिया यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। So this is my entire program. If I run this code, तो वो पहले तो मेरे पास height मांगेगा। It says please enter height of a triangle. ठीक है, चलो height दे दिया 6। उसके बाद वो मेरे पास से base मांगेगा। Please enter base of a triangle. मान लो कि base दे दिया 4, enter. So 6 into 4 divide by 2 will give you the final answer 12. So लास्ट में उसने प्रिंट कर दिया एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल 12। जबकि ये फ्लोट वेरिएबल है, तो सी प्रोग्राम के अंदर फ्लोट 6 डेसिमल पॉइंट तक की एक्यूरेसी आपको देगा। ओके, फ्लोट जो है वो 6 डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी तक कैलकुलेट कर सकता है। दैट्स वाई 12, और देन डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 6 टाइम्स 0 मिलेंगे। So that's the accuracy. Up to that level of accuracy, you have this calculation. Fine. So that gives me the answer. Now, as you can see, I have already logged in to my account. तो फिर मैं ये project जो है उसको save कर सकता हूँ. Let me save and let me call this project as PPS. Now this is A batch, और ये कौन सा second program है. Now this is just a name. आपको जो भी नाम देना है दे सकते हो। I give this name, तो मुझे पता चला कि ठीक है ये PPS का प्रोग्राम है, A बैच का है और सेकंड प्रोग्राम है। That's it. So I can save my project here. So जैसे ही मैं सेव कर दूंगा, I can access all my projects from this link.
So there are a number of projects I've created already. I can access all those projects from this link. Well, so if you have logged in, you can save this thing. अगर आप online use नहीं कर रहे हो, तो don't forget to save your file every time. If I run this code again, then again it is going to ask me height and base. आप कुछ भी height दे सकते हो. Let's say 7 is your height, 3 is your base. Then the area is going to be 10.5. 10.5 will be your area. अब हर बार अगर आपको ये 6 डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी प्रिंट नहीं करनी है, तो यहाँ पे आप %.2f लिख सकते हो. We will see all these formatting options in a lecture. अभी के लिए इतना याद रखो, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट प्रिंट करने हैं. So if I save and run this code one more time with same value, 7 height, 3 base, तो 10.50 आपका आंसर मिलेगा. 2 डेसिमल पॉइंट आफ्टर dot. Yeah, so that's your second practical. Get values from user, perform your calculation and have your answer, print that answer, and you are done. So any query in this code till now? Great. Well, in that case, अगर आपको ये सेकंड प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया, तो फिर फर्स्ट प्रोग्राम में आपको क्या करना है, आप नंबर 1 नंबर 2 यूज़र के पास से गेट करोगे. उसके बाद आप क्या करोगे, वो दोनों नंबर को ऐड करके एक टोटल फाइंड करोगे. टोटल विल बी वेरिएबल. वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके एक आंसर स्टोर करोगे, विल बी योर फोर्थ वेरिएबल. नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2 करके आंसर फाइंड करोगे, दैट विल बी योर वेरिएबल 5. सब्ट्रैक्शन करोगे, विल बी योर वेरिएबल 6. सो चारों आंसर को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके लास्ट में आप उसको प्रिंट कर दो. दैट्स योर प्रैक्टिकल नंबर 1. सिमिलरली यूज़र के पास से प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स, ये 3 वैल्यू गेट करो. आपके वेरिएबल हो जाएंगे PRN. एक बार आपको तीनों वैल्यू मिल जाए तो ये इक्वेशन लिख दो, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा. प्रिंट इट. सेम वे अगर फिफ्थ प्रैक्टिकल देखते हो, तो आप यूज़र को बोलो कि वो डिस्टेंस एंटर करे इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स. एक बार आपको डिस्टेंस मिल जाए तो वो डिस्टेंस जो भी है किलोमीटर में है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर वाला आंसर मिलेगा. फाइन. नाउ मीटर वाले आंसर को 3 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई करो तो आपको फीट मिलेगा. आप सिंपल गूगल कर लो मीटर टू फीट कन्वर्जन. 3-3.25 फीट पे 1 मीटर होता है शायद. नाउ जो भी फीट टोटल फीट आपको मिले हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपको इंचेस मिल जाएंगे, बिकॉज 12 इंच इज इक्वल्स टू 1 फीट. नाउ जो भी आंसर आपको इंच में मिला है उसको आप 3 पॉइंट समथिंग जो भी है सेंटीमीटर, मतलब उससे मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर सेंटीमीटर का मिलेगा. नाउ यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस कन्वर्जन फ्रैक्शंस. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.25 फीट और समथिंग. Then 1 feet is equals to 12 inches and 1 inch is equals to 3 point something or 2 point something centimeter. So you can easily convert those units and then you can print it. Unit print करना है तो printf में लिखना ही होगा, that's it. So that's your fifth practical. Even if you look at sixth practical, तो आपको
यूजर के पास से सेंटीग्रेड वैल्यू गेट करना है, दैट विल बी योर सी। इस इक्वेशन को लिख दो, आपको फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। सेम वे यूजर के पास से यूटी और एटी ले लो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। सो ऑल दीज प्रोग्राम्स आर having a same process: get some value from user, perform some calculation and print it. अब फोर्थ प्रैक्टिकल जो है वो थोड़ा अलग है। Now let me do that thing in front of you. Interchange two numbers. So if you want to create this program, then let me show you. I have saved this file, so fine. Let us create a new project now. So this is my new project and this is the documentation section. तो यहाँ पे मैं अपना documentation part लिख दूँगा. My fourth program is all about writing a C program to interchange two numbers. That's the documentation section. stdio.h void main return 0 लिखा क्योंकि यहाँ पे int है. ऑनलाइन कंपाइलर्स में रिटर्न 0 नहीं लिखता, देन ऑल्सो इट विल वर्क, चलेगा। लेकिन अगर आप कोड ब्लॉक यूज़ करते हो तो रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। फाइन। So this is my C program and let us save this new project as PPS. This is a batch and it's a fourth practical. Yeah. So what it says, आपको दो नंबर जो है वो इंटरचेंज करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो दो नंबर चाहिए। Let's have it. So I'm going to say int num1 and num2. मैंने पहले तो वो दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। Then I'm going to ask two numbers from user. So पहले एक मैसेज देते हैं यूज़र को, प्लीज़ एंटर नंबर 1, और उसके बाद हम वो वैल्यू स्कैन करते हैं, scanf। पहला पैरामीटर हो गया फॉर्मेट स्ट्रिंग, इंटीजर वैल्यू चाहिए तो %d, डबल कोट ख़त्म करने के बाद कोमा, एंड देन आपको ये पहला नंबर कहाँ पे स्टोर करना है, एम्परसेंड num1। तो दिस num1 इज़ योर वेरिएबल, एम्परसेंड लिखना पड़ेगा क्योंकि ये स्कैनफ है। Now similarly I can have second number also. So copy and paste, I'll say please enter number 2 और वो second number को num2 में सेव करूँगा मैं। So this is going to take two numbers from user. अब यूज़र के पास से जैसे ही मैंने नंबर ले लिए, let us print those numbers. So printf. Now this is before change. Before change I have two numbers. पहला नंबर प्रिंट करना है तो %d एंड दूसरा नंबर प्रिंट करना है तो %d। डबल कोट ख़त्म होने के बाद कॉमा। अब जितने प्लेस होल्डर आपने लिखे %d उतने वेरिएबल आप यहाँ पे दे दो उसको। पहले %d की वैल्यू आएगी फ्रॉम num1, कॉमा करके दूसरे %d की वैल्यू आएगी फ्रॉम num2। So I print both the numbers. अब वो प्रिंट करने के बाद मान लो कि हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद मैं वापस दोनों को प्रिंट करूँगा, एंड दिस विल बी आफ्टर चेंज। number 1 number 2, look, still it is number 1 number 2, okay, and then we can run this code and check it. Now before I implement this interchange logic, let us run this code and give two values here. So it's gonna ask me please enter number 1, मान लो कि मैंने दिया 5, उसके बाद वो दूसरा नंबर मांगेगा, let's say 3। तो आपको क्या मिला, बिफोर चेंज 5 and 3,
आफ्टर चेंज 5 and 3, नो चेंज, क्योंकि हमने कुछ चेंज किया ही नहीं अभी तक। और यहाँ पे अगर आपको न्यू लाइन चाहिए तो आप कहीं पे भी /n लिख सकते हो, वेर एवर यू रिक्वायर न्यू लाइन, /n कर दो तो वो न्यू लाइन कर देगा आउटपुट में। सो फाइन, अगर मैं इंटरचेंज नहीं करता हूँ तो वो दोनों प्रिंटफ परफेक्ट है, 5 and 3, 5 and 3। अब लेट्स से यहाँ पे हम दो वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दैट थिंग। लेट्स से interchange numbers using extra variable। ओके, एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो मुझे एक तीसरा वेरिएबल चाहिए। लेट मी डिक्लेयर इट इन फर्स्ट लाइन। मान लो कि हमने उसको टेम्पररी वेरिएबल बोल दिया, टेम्प, कैन बी एनीथिंग एक्स वाई जेड, पर जब तक हो सके एक सही नाम दो उसको, तो आपको पता चले कि वो किस लिए है। दिस इज टेम्पररी, सो टेम्प। अब दो वैल्यू को आप कैसे इंटरचेंज करोगे? आपके पास num1 है और आपके पास num2 है। num1 की वैल्यू 2 में डालनी है और 2 की वैल्यू 1 में डालनी है, तो आप सर्कल बना के बीच में टेम्पररी को यूज करोगे। सो द लॉजिक इज समथिंग लाइक num1 की वैल्यू का बैकअप ले लो टेम्प के अंदर। ओके, तो आप num1 में नई वैल्यू डाल सकते हो num2, और जब num2 आपने num1 में डाल दिया तो आप num2 को अपडेट कर सकते हो with your backup temp। So this is how you can change two values। It is something like look, अगर आपके हाथ में कुछ है, आपके और आपके भाई के हाथ में कुछ है, आप दोनों को वो चीज़ें एक्सचेंज करनी है, बट जो भी चीज़ें हैं वो आपने दोनों हाथ से पकड़ के रखी है, एक हाथ से पकड़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप अपने पास जो है वो किसी और को थमा दोगे। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि प्लीज़ होल्ड दिस फॉर वाइल, तो आप फ्री हो चुके। देन आप अपने भाई के पास से वो वैल्यू ले सकते हो, वो चीज़ ले सकते हो, और उसके बाद क्या बोलोगे? अपने फ्रेंड को बोलोगे कि तेरे पास जो है वो मेरे भाई को दे दे। सिंपल वे। सो टेम्प इज योर फ्रेंड, टेम्पररी variable, so it is going to interchange those two numbers. Now if we save this code and run it, then we are going to have those two numbers interchanged. Let's say first value is 5, second value is 3, तो वो बोलेगा बिफोर चेंज आपके पास 5 and 3 था, बट आफ्टर चेंज वो 3 and 5 हो चुका है। ओके, सो you can see that those two values have been interchanged. Now this was one possible way। अगर मैं ये कोड को कमेंट कर दूं, मल्टी लाइन कमेंट, because I want to have a look at other option। मुझे दूसरा ऑप्शन देखना है, इंटरचेंज नंबर्स यूजिंग मैथ ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन करके भी आप दो नंबर को चेंज कर सकते हो, अगर वो दोनों नंबर मीन सिंपल नंबर है और पॉजिटिव नंबर्स हैं। रिमेंबर दैट लॉजिक इज समथिंग लाइक, आप सबसे पहले num1 और num2 का समेशन करोगे, और वो फाइनल टोटल आंसर जो मिलेगा उसको आप num1 में स्टोर करोगे। ओके, नाउ इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक, मान लो कि आपका फर्स्ट नंबर है 5, दूसरा नंबर है 3, तो 5 + 3 आंसर क्या मिलेगा? 8। ओके, so what you are doing is num1 is 5, num2 is 3, तो 5 + 3 = 8 करके 8 आपने कहाँ पे डाल दिया? num1 में। आपने num1 को 8 बना दिया। अब then you will say that num2 = num1 - num2।
Now when you do this, तो एक्चुअल में क्या होगा, व्हाट इज योर num1, वो अपडेट हो चुका है, वो क्या है 8. So your num1 is 8. Then you say minus. What is your num2? अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ, वो 3 का 3 है, so it's gonna be 3. 8 minus 3 is what? Is 5. तो अब num2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. पहले num1 5 था, लेकिन अब num2 5 हो चुका है. And then finally we'll have num1 equals to num1 minus num2. So it is something like, what is your number 1 right now? It is 8. Okay, 8 minus, what is your number 2? Number 2 हमने अपडेट कर दिया, क्या है वो 5. So 8 minus 5 is going to be 3. तो अब num1 क्या हो जाएगा 3. This is just a mathematical process. आपने दो नंबर को इंटरचेंज कर दिया. Now this is also possible. If I save this code and run this code now, it is going to give me interchanged numbers. Right? So both are correct way to interchange numbers. आप एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके भी कर सकते हो, या तो फिर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करके भी कर सकते हो. अगर वो नंबर पॉजिटिव नंबर है तो ये सही है. अगर आपको नेगेटिव नंबर्स चेंज करने हैं तो आपको टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा. ओके, so this is your fourth practical. Any doubt or query? Okay, Abhishek is asking, in float how much integer value we can give. Abhishek, if you remember, in a lecture session we have gone for range. हर एक डेटा टाइप का रेंज अलग है, बिकॉज हर एक डेटा टाइप जो है वो अलग अलग साइज का है. इंटीजर हैज 2 बाइट्स, मतलब टोटल 16 बिट्स, जबकि फ्लोट 4 बाइट का है, टोटल 32 बिट्स. तो फ्लोट का रेंज बढ़ जाएगा. ओके, बड़ी वैल्यू आप फ्लोट में सेव कर पाओगे. दैट्स वन पॉइंट. अनदर पॉइंट, फ्लोट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है. सो 10.2 अगर आपको चाहिए तो फ्लोट कंपलसरी फ्लोट लेना पड़ेगा. इंटीजर करोगे तो वो 0.2 सेव नहीं करेगा. Okay, so well, then Ajay is saying, we don't remember any codes. Looks like we have to write it and remember. Yes, definitely, Ajay. You have to write your code. Then and then only you will be much comfortable with those things. आपको पूरा प्रोग्राम याद नहीं रखना है. डोंट डू दैट थिंग. पूरा प्रोग्राम मगअप मत करो. आपको ये प्रोग्राम समझना है और याद क्या रखना है, printf का सिंटेक्स, scanf का सिंटेक्स. दैट्स इट. अगर printf और scanf आपको पता है तो लॉजिक आप खुद का बना सकते हो. ओके ओके. Abhishek is saying, sir, in place of float, why integer is not used? Look, in swapping I have used integer, but in the previous program, area. Okay, now when you look at area equation, area will be calculated with 0.5, half. So final calculation is always going to be floating point number. That's why मेरा जो कैलकुलेशन है, अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा तो मुझे वेरिएबल भी फ्लोट लेना पड़ेगा. दैट्स द रीजन. ओके अभिषेक. Well, Ajay is saying we need only a screenshot of format which is required. Well, at present you can have a screenshot to understand and to remember, but जैसे ही आप ज़्यादा कोड लिखते जाओगे, धीरे धीरे सब कुछ आपको याद रहता जाएगा. Now this is your first attempt to write something.
दैट्स वाई आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, बट जैसे ही आप धीरे धीरे प्रोग्राम बनाते जाओगे आपको ये इजी लगेगा, आपको सब कुछ याद रह जाएगा। एनी मोर क्वेरीज? वेल ओके देन, सो व्हाट वी हैव डन, मैंने आपको सेकंड प्रैक्टिकल करके दिखाया जिसको एज अ बेस आप रख के सारे प्रोग्राम बना सकते हो अप टू प्रैक्टिकल 7। फोर्थ प्रैक्टिकल थोड़ा अलग था तो वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। फाइन। सो नाउ व्हाट यू विल डू इज you are going to implement all these programs one by one. I'm going to stop this recording because we don't want unnecessary recording here, but now it's your turn to get your hands dirty and write your own programs. We all will be here till the end of this lab. मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर रखूंगा बीच बीच में अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए। ओके, यू राइट योर प्रोग्राम, वो प्रोग्राम रन करो। कहीं पे भी अगर एरर है, डिफ़िकल्टी है, आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे पूछ सकते हो। वी विल सॉल्व दोज एरर्स एंड कंप्लीट आवर कोड। फाइन। सो before I close recording, just post your enrollment numbers in a chat box so that I can record your attendance here. Quickly post your attendance on a chat box. Then I'm going to stop this recording. अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में 3 डॉट्स आपको दिखेंगे। क्लिक ऑन दोज 3 डॉट्स, तो जो मेन्यू ओपन होगा उसमें आपको चैट मिलेगी। गो टू दैट विंडो, राइट योर नंबर, पोस्ट इट। Abhishek, where are you? Post your number. Abhishek and Jay. Yeah, Abhishek ने डाल दिया, it's okay. Where is Jay? Jay and Ravi is already there. Yeah, only Jay. Last call, Jay Doburia. Post your number, otherwise I'm going to consider you as absent because physically you are not here. Okay, fine. So let me close this recording session now.